अरे यार कैमरे से बात नहीं हो सकती। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आई रियली इन्जॉय टॉकिंग टू द कैमरा। मुझे बंदे की ज़रूरत ही नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बस दुनिया से कोई लेना देना रखूँ ही ना अब। तो बस सारा दिन यही चलता रहे, लाइट ठीक करो यार। ये लाइट का लफड़ा बहुत है, पर लाइट का लफड़ा हो जाए तो क्या मज़ा आ जाए लाइफ यार। सारा दिन कैमरे में बोलते रहो। मैं ना आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताऊंगा। थोड़े दिन पहले ना मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ इन आईटी। लेट्स कॉल हर संगीता जी। संगीता जी आईटी में है, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। 30 लाख का पैकेज है इंडिया में। हस्बैंड का उनके 20 लाख 25 लाख का पैकेज है इंडिया में। 55 lakhs उनके ईयरली इनकम है। सुनने में लगता है $70,000, $70,000 ऐसे लगता है, पर मैं सारा बताऊंगा आपको। संगीता जी को भी बताऊंगा, आपके माध्यम से पता चलता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो संगीता जी मेक्स अराउंड $70,000 in India. Her husband and herself both together make around, and they live in Delhi, and they have their own house. So, but they may have to buy another house. She was telling me. I don't think that's a problem. She can easily buy another house for 1 or 1.5 crore. Anyway, so continuing our discussion, she came to America on L1. She came in touch with me, howsoever. Then she was saying, I thought in America life was really great. When she would go to her colleagues' homes, they'll with the button they'll open the garage, and it will all be nice and funky. It was such a nice thing. बोरे garage दिखाऊँ आपको दो बोरे सारा दिन। तो यार छोड़ो, मैंने सब नहीं करना था, बस फिर वो कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा दोबारा से, तो लेट मी नॉट गो देयर। बट बेसिकली ठीक है। सो दिस अ वेरी कॉमन थिंग। तो कहती इट वॉज सो लग्जूरियस। अंदर गए, दिस काउंटर टॉप्स, दिस एंड दैट, सारा कुछ फ्लैशी, ग्रेट खाना, पानी आ रहा है, बटन चलाया, गैस, गर्म पानी, ठंडा पानी, सब कुछ, दिस कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, गैस, एवरीथिंग इज ग्रेट। व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? आई सेड द प्रॉब्लम हियर इज, it felt so luxurious. That's the word she used. That when we'll approach their car, when they will approach their house in the Mercedes that he's driving, he would press the button and the gate will open. Then he'll go from the community, he'll go inside. Then again he'll press one more button. Then the garage will open, and he will park the car and will get out, and then we'll go. All right? Mystery? Mystery, है ना? It's a mystery, right? Let's talk about this mystery. There is no doubt about this. Resources here are cheap, and higher end resources here are cheap, and made is very expensive, right? So Mercedes is not a big deal. If you cannot even buy a Mercedes, then that's a stupidity. That means you're just a really idiot, some big idiot. Now talking about that friend of Sangeeta ji, that garage that you're talking about, who cleans that garage? Who cleans that garage? I have never been able to find a guy who can clean my garage, to be very honest. I'm not talking about clutter, I'm also talking about cleaning. सारा roof, सारे cobwebs निकालने, सब करना पड़ता है. I have to do myself, because my cleaning lady she wipes the floors, mops the floors, cleans the floors, but not the cobwebs and all that. She refused. Who has to do now? Can you get a guy just for this purpose? Answer is no. You have to do it yourself. That garage door has to be oiled and tuned and serviced every year. The cost is $100. इसी के पैसे दे रहे हैं आपको वो। अगर आप so some people, Sangeeta ji might say, so that, yeah, so yeah, that means you have money, that's why you're paying $100. No, I said yeah, but then that's what they're paying you $100 for. So remember, we talk about why you are having $150K in America, because similarly they have given you expenses also. These are the kind of expenses. There are small hidden so many expenses, in which 200K, 250K income just is not enough to live in this country, to be very honest. Let's keep going. Regarding the garage has to be cleaned, garage door has to be serviced. What if garage needs a repair? Very costly, and that
garage floor has to be maintained. Every 10 years it has to be paved or something. It has to be sealed again. Oil falls on it from the car and so many things fall on it, so it becomes unclean and it has to be cleaned again. Then it has to be sealed. Very costly process. So all this money you have to keep spending on these garages. And this door opener, this and that, yeah, so all this thing is like kind of really set in the whole American lifestyle. So I don't see anything. If you are talking about American lifestyle, it's such a cool thing, then what about the cleanliness of the kitchen where they would go right after they will park their car? Who will have to clean that kitchen? Who will have to cook? Who will have to do all these things? Everything has to be done by yourself. That's your answer, Sangeeta ji. Everything has to be done by yourself. And that's not fucking great in situation. This is the biggest issue in this country. You have to do everything yourself. All the work has to be done by yourself. And in front of that, this garage and all those things are very, and you, the amount, the money that you are making, 40 lakhs? How much? Almost 45 lakhs? That's a lot of money. That's a lot of money. Very soon you will be able to buy your own house of 2 crores, pay it off in 3-4 years. Now you're the queen of the country, yaar. You don't need a garage door. You have a maid, you can have a servant. So you can have a great life, very successful life in India if you're making 40-50 lakhs. Why do you have to come here and go through all this hassle and have a garage door? That's it. That's what you want, only that's the only thing. It's not worth it, trust me. It's not worth it at all. कुछ नहीं यहाँ पे. अगर यही कमाना है तो 250K, ठीक है ना. तो मैं दूसरी आज मैं एक और बात करूँगा आपसे, बिल्कुल नई, बिल्कुल डिफरेंट, कि इस कंट्री में रहने के लिए, अमेरिका में रहने के लिए कितने पैसे हों कि थोड़ा सा कंफर्टेबली रह सकते हो. 3-4 लाख तो डॉलर तो मैंने बोल दिए हैं. दैट इज जस्ट गिव्स यू मिडल माइनस लाइफ स्टाइल, राइट. मेड नहीं है, ये मिडल. अगर 2 मर्सिडीज़ आप ले पाते हो तो मिडल हो गया बस. आई टोल्ड यू मर्सिडीज़ की अपफ्रंट कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है और उसकी वारंटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. और सबसे बड़ी बात, उसकी सर्विस एंड मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा है. तो वो मतलब सब मिला के, मतलब कि मर्सिडीज़ की कॉस्ट काफ़ी पड़ती है. तो जो 300-400K में जो बंदा अर्न कर रहा है, वो बस एक मर्सिडीज़ ले ले, बहुत बड़ी बात है. 2 ले ले तो ठीक है, बस फिर मिडल, क्योंकि अभी मेड नहीं आई ना. अगर मेड आ जाए तो मिडल प्लस. सिमिलरली इंडिया में अगर किसी के पास मेड है और अच्छी गाड़ी आ जाए, लाइक ऑडी आ जाए, तो ये नहीं है कि कोई बड़ा वो हाई क्लास या अपर क्लास हो गया, वो मिडिल प्लस है, बस थोड़ा सा ऊपर है लोगों से. फिर टोयोटा होंडा सबके पास, आपके पास ही है. इंडिया में अगर, हाँ, अब मेरे को लगता है जो इस कंट्री में मेरे को जो लगता है अगली लग्जरी जो होनी चाहिए ना, जो बंदे को असली चीज़ जो मिलनी चाहिए, वो है सर्वेंट. इस कंट्री में या किसी भी कंट्री में, हम दोनों जगह पे क्या होता है, मेड तो आके, मैं फ़र्क बता दूँ, क्लीनर होती है, आके सिर्फ क्लीन करती है घर को और कुछ नहीं करती, और वो हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार आती है, वो चले जाती है. दैट इज़ योर क्लीनर. अगला जो है वो है, राइट, कि आपका बेबीसिटर आके बेबीसिट करती है, चले जाती है, ठीक है. फिर आपकी कोई पूल वाला आता है, पूल क्लीन करके चला जाता है, बस दैट्स इट. और पूल के सारे केमिकल्स बैलेंस करके चला जाता है और कुछ नहीं करता, पूल रिपेयर भी नहीं करता. छोड़ो ये कि वो कोई और आपकी कुर्सी उठा के रख देगा. गार्डनर आगे गार्डनिंग करता है और कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग की चीज़ें करता है. तो मान लीजिए पत्ते नीचे गिर गए तो गार्डन क्लीन कर देगा, हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद आएगा ज़्यादा. अगर पूल में कुछ गिर गया तो वो पूल क्लीनर क्लीन कर देगा. लेकिन अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे दूध गिर जाए अभी, तो कौन साफ करेगा? बच्चे ने कोई क्लटर कर दिया अंदर, कौन साफ करेगा? यार ये सारा काम, जिस तरह के छोटे छोटे काम आते रहते हैं ना, सारा दिन खड़ आते रहते हैं, इसको करने के लिए आपको एक सर्वेंट होता है इंडिया में. तो यहाँ पे सर्वेंट इंडिया में जिसके पास है, मेरे हिसाब से वो मिडिल प्लस है. बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, वो मिडिल प्लस है. सर्वेंट नहीं लोगों के पास होता है इंडिया में भी. यहाँ पे भी अगली जो चीज़ मेरे को लगता है होनी चाहिए ना, वो सर्वेंट है. मेड तो आ जाती है, मैंने बताया $2,000 में होता है. तो अगर आप $2,000 अफोर्ड कर सकते हो, यू कैन गेट अ मेड. खाना वाना, कपड़े,
बर्तन उससे संभले रहते हैं, और किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह सब उसमें इंक्लूडेड होती है, वो सब ठीक रहता है, थोड़ा संभला रहता है। तो मेड तो आ जाती है, सर्वेंट नहीं है यहाँ पे। इस घर में वैसे हमारे पास एक सर्वेंट है, पता है कौन? मैं खुद। इस घर का सर्वेंट मैं ही हूँ। हर चीज़ मेरे पर आती है, ये ओपन करना, ये बंद करना, ये नीचे गिर जाए ठीक करना, ये सारा फेंकना, सब बर्तन उठा उठा के रखने, सारा मेरे पर ही आता है काम। परेशान हूँ मैं इस चीज़ से। इस तरह का इतना ज़्यादा काम है, ये नहीं किसी को आवाज़ मारी, हाँ जी आ जाओ ले जाओ ज़रा, हेलो, राइट। नौकर है ही नहीं कोई यहाँ, सभी एक दो हम ही नौकर हैं बस। कुछ भी लगा लो, कुछ टीवी इधर से उधर रखना है, हम ही करना पड़ेगा। मेरा दोस्त है, उसके पास इंडिया में नौकर है, वो मतलब नौकर रखता है उसका सारा कुछ उठा के। ये जो मिडिल प्लस लाइफ है ना, तो टू मी इंडिया में अगर मिडिल प्लस लाइफ अच्छी, मतलब नॉट अपर मिडिल क्लास, मिडिल प्लस, तो मैं अभी इनकम्स पे तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है लाइफ स्टाइल जो है मैं उस पर वही देख सकते हैं हम लोग। उसको सर्वेंट भी हो, मेड आती हो, सर्वेंट भी हो, और अच्छी गाड़ी भी हो, कम से कम 25 लाख की गाड़ी तो हो, 25, तो वो मिडिल प्लस है। यहाँ पे भी यही है। इसी तरह से मिडिल प्लस अगर तुमने बनना है तो यू नीड मर्सिडीज, यू नीड मेड। सर्वेंट तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कोई, मतलब सर्वेंट यहाँ पे, मतलब मैं तो नहीं उस लेवल के लोगों के बीच में उठता बैठता, मैंने तो ना देखा है ना खुद के घर में। मेड कॉमन है, मेड मिलती है सबके पास से मिलती, पर होती है ज़रूर। तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा स्पास है। अब यहाँ पे धूल हो गई है, साला कौन साफ़ करेगा? ये देखो, ये धूल है, ये देखो, ये देखो, अगर आप देख सकते हो तो ये दिख रहा है, इतनी धूल है, ये देखो, ये धूल है, दिख रहा है? कौन साफ करेगा? साला मुझे ही करनी पड़ेगी। यस, और क्या? तुम्हें क्या लगता है इतना करने के बाद, इतना लाइफ में इतने पापड़ बेलने के बाद यहाँ पे पहुँचे, सब कुछ किया, 20 साल हो गए इस कंट्री में लगे हुए, अगर आज भी ये सब करना पड़े तो आई एम नॉट हैप्पी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो खुश नहीं हूँ, ये तो आपको वैसे ही पता होगा, पूरी सीरीज से पता चल रहा होगा, मेरी सीरीज चीख चीख के बोल रही होगी आपको कि ये बंदा खुश नहीं है, बाकी तो पता नहीं। कोई खुशी वाली बात नहीं है, साला सारा दिन लगे रहो पागलों की तरह से। ये सब जब ये धूल क्या है, थोड़ी सी कल को आंधी आई थी उसके कारण आ गई है, सफाई वाली आएगी कर देगी, 2 हफ्ते बाद करेगी, पर अभी साफ करनी हो तो फिर क्या करेंगे? तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। ये क्या सारा दिन काम करते रहना पड़ता है हर चीज़। मतलब गार्डनर आएगा, हमारा गार्डनर तो महीने में 1 ही बार, पता नहीं 2 बार आता है, या 2-3 हफ्ते बाद 1 बार आता है, तो वाइफ ज़्यादा देखती है इन चीज़ों को। मुझे लगता है कि ये एक जो चीज़ है, सर्वेंट जरूर चाहिए इस कंट्री में, मतलब लिटरली अगर सर्वेंट हो, हाँ फिर मेरी कंप्लेंट ज़ीरो हो जाएगी। मेड से मेरी कंप्लेंट ज़ीरो नहीं हो रही, क्योंकि खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, सारा सॉल्व हुआ है, लेकिन सर्वेंट की प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है। वो भी चाहिए यार, सारा दिन लगे रहो, क्या कमाया फिर अगर हमने ये भी नहीं कमाया तो? इतना लगने के बाद अगर हम मिडिल में ही पहुँचे, मिडिल प्लस थोड़ा सा मिडिल में ही पहुँचे, तो क्या यार हमने कमा लिया? ठीक है ना? तो अगर आपने मेड करनी है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। यू नीड टू हैव $500,000 की इनकम होनी चाहिए आपकी। $500,000 से एक नॉर्मल लाइफस्टाइल स्टार्ट होता है आपके घर में। यू कैन अफोर्ड बेटर थिंग्स, हर चीज़ आप अच्छी लेके आते हो। आप अमेरिका आए हो, आपने कुछ ख्वाब देखे थे, उसके हिसाब से जो ख्वाब हमने देखे थे, मैंने तो जो ख्वाब देखे उसके हिसाब से मैं हर चीज़ जो ले पाता हूँ। तो मुझे लगता है 500,000 की इनकम चाहिए। 500-600 की इनकम से घर अच्छा चलता है। मेड भी आ सकती है, आई टोल्ड यू, मेड भी आ जाती है। 2-2.25 हज़ार में मेड आई जाती है। हमारे पास एक गोरी मेड भी थी, वो $2,000 लेती, वो $2,200 बच्चा भी देखती थी, 2200-2300 लेती थी। तो बच्चा भी देख देती थी, घर का भी काम करती। फिर मैंने सोचा अगर मान लो बच्चा ना हो तब भी तो आई जाती ना वो, तो $2200-2300 के अंदर मतलब आपका काम बन सकता है। गोरी आएगी, सुबह आ जाएगी, 8 बजे पहुँचती थी, 5 बजे चली जाती, बड़ी पंक्चुअल थी। एंड शी विल टेक केयर ऑफ द एंटायर थिंग। शी वॉज वेरी नाइस दैट वे, शी वॉज वेरी नाइस दैट वे। सो द पॉइंट इज़ गाइज, मतलब कि मतलब कि 2-2.5 हज़ार पे उसकी कॉस्ट है, और वो 500 के में ही वहन होती है। बाय द वे 400 से लेके 500 में 100 के का जंप है सैलरी में, लेकिन जो टोटल नेट सैलरी है तो 50 के ही इंक्रीज़ हुई ना आपकी। यू शुड डू दैट इन ADP पेरोल कैलकुलेटर। करेंगे, कल को करेंगे। आज मौसम अच्छा है ना, धूप नहीं और छाएँ सब जगह और बादल निकले हुए, तो रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है, तो आई विल डू दिस काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग्स टुडे। लेकिन करेंगे, वो भी करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो बस गाइज, ये आपके साथ बात करनी थी कि यहाँ पे 500 के तक का तो मतलब कि पैसा चाहिए, अदरवाइज़ यू कैन नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ। मेरे हिसाब से तो मिडिल लाइफ के लिए 400-500 के पे आप मिडिल लाइफ जीते हो, और जिसकी वो भी नहीं है वो बस अपना यार सॉरी यार मिडिल माइनस लाइफ है।
और अगर 100K 150K आपके सामने है, लोअर मिडिल क्लास लाइफ है, कहाँ से आप मिडिल क्लास हो यार इस कंट्री में? 150K में अबे बस लोअर मिडिल क्लास की लाइफ जीता है बंदा। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता, वो भाग भाग के आ जाते हैं। मेरा फ्रेंड, इनफैक्ट वही मैंने आपको बताया ना, 24 लाख का जिसकी जॉब लगी थी, उन्हीं की किसी कोई फ्रेंड की यहाँ पे 100K की जॉब लगी, तो बड़े खुश। 75 लाख, उनको पता ही नहीं कि 75 लाख जो यहाँ के हैं वो तो मतलब सॉरी टू से, मतलब वो तो जमादार भी इससे ज़्यादा कमाते हैं, और वो फिर जमादार वाली लाइफ ही जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से वो बिल गेट्स वाली लाइफ जीने लगाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। दे लिव अ वेरी, एज आई टोल्ड यू, दे लिव अ वेरी पुअर लाइफ। पुअर लाइफ जीने के लिए 75 लाख चाहिए यहाँ पे। और वो फ्रेंड ऐसी है, मैंने साफ बता दिया, मैंने कहा कहाँ काम कर रही है? बे एरिया। बे एरिया में तो घर क्या, आपको घर का मतलब एक ईंट भी नहीं आपसे अफोर्ड हो सकती 100,000 में, तो वहाँ पे 3-3 मिलियन डॉलर के घर हैं, कभी ज़िंदगी में घर नहीं ले पाएगी, और बे एरिया जल्दी से छोड़ेगी। और फॉर नाउ वो किसी जगह पे एक रूम में 2 बंदे रह रहे होंगे, एक रूम में एक रहना भी बहुत महंगा है वहाँ पे, 1200-1500 रुपये का एक रूम मिलता है। कौन स्पेंड करेगा इतना पैसा? जो बच्चा इंडिया से आया होता है, बैचलर होता है या अनमैरिड होती है लड़की या लड़का, दे कैन सेव मनी बाय नॉट, दे कैन सेव मनी इन दिस वे। सो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, और आराम से सब सेव कर रही होगी। बस सारे बैचलर ऐसे ही रहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी बात है। तो वो बड़े, तो ये लोगों को एक फेयर कंपैरिजन करना आता नहीं होता, तो फेयर कंपैरिजन तो यही कह रहा है कि वो पैसे बहुत ही कम है। तो